Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start our new chapter number 15, improvement in food resources. Improvement in food resources. This chapter is related to the crops. How the farmers are growing the crops, which are the different steps in which they can improve their crops yields, what are the different factors which affect the crops, what are the varieties of crops, how the crops can improve their yields. So this topic we are discussing in this chapters, improvement in food resources. Now we know that every living organisms need food for their body development, growth and health. So the food we obtain, nutrients like protein, carbohydrates, fat, vitamins and minerals, they all obtain from the plants. So there is a necessity that the improvement in crop yields are very much beneficial for the crop, for the farmers as well as for the productivity. So first topic, 203 page, improvement in crop yields. It means what? जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन फार्मर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो हैं इम्प्रूवमेंट वो क्रॉप्स फार्मर्स जो हैं वो कैसे कर पाएंगे. सो द सीरियल्स फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज एंड अदर फॉर एग्जांपल पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, दिस वन पिजन घी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो इनके अंदर फार्मर्स जो हैं ये अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं. और फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन्स, ग्राउंडनट, सीजम, कैस्टर, मस्टर्ड, these all the examples are the oil seeds. They are necessary for our body because they give us fats. Vegetables, spices and fruits, they provide a large varieties of vitamins and minerals. In addition to this, the small amount of protein, for example protein, carbohydrates and fats, they are also we get from the plants. So the crop is independent upon the different climate condition, for example temperature, photoperiods means how much light they are required for their growth, for their and completion of their life cycle. So importance of light for the plants is, for example, light is photo period, it is maintained during the availability of light. Growth of plants and their flowering is depending upon the light. Photosynthesis process is possible for due to the light. Number first, crop varieties improvement. Varieties improvement means कि क्रॉप्स की वैरायटीज जो हैं डिफरेंट फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी जो वैरायटीज जो हैं उनको कैसे और वो इम्प्रूव कर सकते हैं. सो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट मीन्स देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स विच द फार्मर्स कैन बी डिजर्व. उनको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी क्रॉप्स जो है आगे और ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ में कैसे हमें मिलेंगी, कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा. तो उनके लिए उनको कुछ क्रॉप्स की स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनको ध्यान में रखने पड़ते हैं. नंबर फर्स्ट, द क्रॉप इट शुड बी डिजीज फ्री और इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस. डिजीज रेजिस्टेंस मीन्स वो जो भी क्रॉप्स की कल्टिवेशन कर रहे हैं इट शुड बी डिजीज फ्री. अगर क्रॉप्स जो है एट द लेवल ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योर हो जाती है तो उस टाइम पे बहुत सारी पेस्ट एंड बहुत सारी जो हैं अदर एनिमल्स या कुछ भी फंगस वगैरह जो है उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. तो किसी भी उस मेच्योरिटी के टाइम पे उनकी क्रॉप्स जो है वो डिजीज़ फ्री रहें, डिजीज़ रेजिस्टेंस रहें, किसी भी डिजीज़ का उनको इफेक्ट नहीं हो. फॉर एग्जांपल वीट में देखो आप, वीट्स के जो ग्रेन हैं वो अंदर से ब्लैक हो जाते हैं. दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द वीट स्मट. पटेटोज़ की देखो, पटेटोज़ की जो खेती है वो भी अंदर से ख़राब हो जाते हैं. टोबाको के लीव्स जो तंबाकू में हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी जो है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर दें. तो
फार्मर्स क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपनी कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप्स के, उनको फर्स्ट उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो जो भी सीड्स ले रहे हैं इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस, जल्दी किसी भी डिजीज का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आए। नंबर सेकेंड, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। नंबर थर्ड, प्रोडक्ट quality, and number fourth, high yields. ये 4 पॉइंट्स का जो है फार्मर्स ध्यान रखेंगे। नंबर फर्स्ट, उनकी जो क्रॉप्स है वो डिजीज फ्री रहे। नंबर सेकंड, वो फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करें। फर्टिलाइजर्स उन प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए लेते हैं, जैसे हम लोग अपनी बॉडी में डेट ह्यूमन बींग्स वी कैन टेक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रफेज, फैट्स, ठीक है, विटामिन, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए। तो सिमिलरली इन दिस वे प्लांट्स आल्सो टेक द फर्टिलाइजर्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनसे उनकी सीड्स का डेवलपमेंट होगा, उनकी लीव्स अच्छी बनेंगी, उनकी रूट्स जो हैं वो जल्दी से डेवलप होंगे और प्लांट्स अपनी ग्रोथ कर सकेंगे। नंबर थर्ड, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, और जो भी प्लांट्स जो हैं वो क्रॉप्स कल्टिवेशन जो कर रहे हैं फार्मर्स, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट रहे। और हाई यील्ड मतलब फार्मर्स जो हैं जितनी भी वो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी उनको ज़्यादा मिले, कम टाइम के अंदर उनको ज़्यादा क्रॉप्स का कल्टीवेशन होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसको साइंटिफिकली साइंस जो है काफ़ी चीज़ों से इसको नए नए टेक्निक्स से आगे इम्प्रूवमेंट कर रही है। इम्प्रूवमेंट के लिए उनको जेनेटिकली 2-3 चीज़ों का हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट, इट इज ऑन द पेज नंबर 204, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट इज द वन वे ऑफ incorporating desirable characters into the crop varieties by hybridization. Hybridization refer to the cross between the genetically dissimilar plants. Hybridization जो है it is done in case of animals also. अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या, एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन सपोज करो कि मेरे पास एक प्लांट है मैंगो का, चलो एक प्लांट ले रहे हैं, ठीक है। दिस मैंगो प्लांट इट इज हैविंग दैट देयर फ्रूट इज स्वीट इन टेस्ट बट देयर कलर इज नॉट वेरी गुड, मतलब बाहर से आपको ग्रीन जैसा दिखाई देगा लेकिन उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मैंगो स्वीट है। तो एक इसका ये प्लस पॉइंट आ गया कि वो स्वीट है। सेकंड, मैंगो की वैरायटी हम लोग ले रहे हैं कि उसका कलर अच्छा है, कलर इज़ वेरी गुड, मतलब बिल्कुल येलो कलर का है लेकिन बट इट इज़ सोर इन टेस्ट, अंदर से वो खट्टा है। तो दोनों के कैरेक्टर्स में एक एक प्लस पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट इन दिस केस, फर्स्ट मैंगो इट इज़ स्वीट इन टेस्ट एंड सेकेंड अलग जो प्लांट है मैंगो का, द मैंगो इज़ येलो इन कलर। हाइब्रिडेशन मीन्स इनके जेनेटिकली इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस किया जाएगा और उसके बाद जो न्यू सीड का डेवलपमेंट आएगा या जो न्यू प्लांट इसमें से बनेगा, इट हैविंग द बोथ देयर डिजायरेबल क्वालिटीज, इट इज स्वीट इन के टेस्ट एज वेल एज इट इज गुड इन कलर। मतलब दो प्लांट्स को जेनेटिकली क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो न्यू प्लांट ग्रो करेगा उसमें उन दोनों के अच्छे वाले जो क्वालिटीज हैं वो आएंगी। यही केस हम लोगों ने एनिमल्स में भी देखा है, एनिमल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल म्यूल जो है एक एनिमल है जिसको हम लोग हिली एरिया में यूज़ कर देखते हैं, छोटा सा है। इट इज़ जस्ट लाइक द डोंकी एंड हॉर्स। तो डोंकी एंड हॉर्स इनको क्रॉस ब्रीडिंग करके इसमें से जो है म्यूल का बना है। अब डोंकी का प्लस पॉइंट क्या है, इट कैरीज द हैवी लोड एंड हॉर्स इट रन वेरी फास्ट। तो म्यूल के अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे इन दोनों के आएंगे कि वो लोड भी ज़्यादा उठा पाएगा प्लस हॉर्स की तरह तेज भी चल पाएगा। So I think you must you have clear this topic hybridization. Hybridization जो है ये 2-3 मेथड से की जाएगी। नंबर फर्स्ट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के बीच में भी की जाती है, अलग अलग प्लांट्स लेके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के बीच में। नंबर सेम स्पीसीज सेम प्लांट्स लेके उनके बीच में भी की जाती है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड, 2 डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज और 2 डिफरेंट स्पीसीज का भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड से हम लोग हाइब्रिडेशन को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, सेम स्पीसीज वाले प्लांट्स और
टू सेम स्पीसीज वाले कैरेक्टर्स की भी हम लोग विद हैविंग द सेम जीनियस उसको भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा कि हमारे नेक्स्ट आने वाली जो प्लांट्स की जनरेशन आएगी दे आर हैविंग द गुड वैराइटीज ऑफ, और सॉरी दे आर हैविंग द गुड क्वालिटी ऑफ दैट वन, फर्स्ट वाला प्लांट और सेकंड वाला प्लांट्स का जो उसका कैरेक्टर्स है वो उसमें आएगा। सो न्यू एंड इम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी टेकन, और इसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। नाउ अभी फॉर एग्जांपल मैंने दो प्लांट्स को लिया, दोनों प्लांट्स को क्रॉस किया, यहाँ पे मेरे पास दोनों प्लांट्स का मिला के एक न्यू सीड बना। अभी यही सीड को अगर हम लोग ग्रो करेंगे, इसमें से जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें इन दोनों के प्लस पॉइंट देंगे, अच्छे वाले कैरेक्टर्स इस सीड में दिखाई देंगे। वो सीड जो है इट इज़ हैविंग द डिजीज़ फ्री, और उसमें से फिर बायोटिक एंड ए बायोटिक जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं जो सॉयल या टेम्परेचर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस उसके ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उसका उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद वो प्लांट जल्दी मेच्योर हो जाएगा, क्योंकि किसान को क्या चाहिए, फार्मर्स को क्या चाहिए, उनकी खेती जो है वो जल्दी अपने टाइम पे मेच्योर हो जाए और वहाँ से वो अपना बेनिफिट ले सके। सो दिस इज़ द, और उसके बाद ये जो है हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग न्यू न्यू टाइप्स की वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स और न्यू न्यू टाइप्स के एनिमल्स की हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। सो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ना 205 पेज 205 क्रॉप प्रोडक्शन in the management. Now 205 पेज पे some of the factors which are variety improvement is done. इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है? अभी हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? नंबर फर्स्ट, हायर यील्ड होना चाहिए। हायर यील्ड, इट मीन्स व्हाट? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। कितने एरिया के अंदर आप क्रॉप्स को लगा रहे हो और उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा उसकी आपकी क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो। नंबर सेकेंड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इट मीन्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी इट डिपेंड अपॉन फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स। सो फॉर एग्जाम्पल बेकिंग क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी मीन्स ये आपकी वीट में आ जाएगा। प्रोटीन क्वालिटी जो है ये आपकी पल्सिस में दिखाई देंगी, एंड ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स। तो और दिस वन फ्रूट्स के अंदर जो है प्रिजर्विंग क्वालिटीज जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। नंबर थर्ड, बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल डिजीज, कि प्लांट्स को डिजीज कॉज तो नहीं हो रहा है किसी कारण, इंसेक्ट्स उसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं कर रहे, पेस्ट जो हैं वो उनको इफेक्ट तो नहीं कर रहे। एंड ए बायोटिक मीन्स टेम्परेचर, सॉइल कैसी है, हीट कैसा है उस टाइम पे, कोल्ड है, और सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एंड चेंज इन द मेच्योरिटी फॉर्म, मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो है, मेच्योरिटी ड्यूरेशन, एंड इन केस द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर द इकोनॉमिकली इज द वैराइटीज। जितना मेच्योर जल्दी हो जाएगी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कोई भी क्रॉप्स हैं वो उसकी मेच्योरिटी लेवल, उसको पकने में, मेच्योरिटी लेवल मीन्स पक गई है, ठीक है, तो उसको पकने में अगर 6 मंथ लग रहे हैं तो मेच्योरिटी ड्यूरेशन का, अगर वो भी क्रॉप्स जो है 2 या 3 मंथ के अंदर वो मेच्योर हो गई है तो उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको प्लांट्स जो है फार्मर्स जो हैं वो जल्दी उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उसको एक फार्मर जो है उसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? इट मीन्स crop production management. Next topic 15.1. Crop production management
Crop production management. In India, we know that in our agriculture-based countries, farming ranges from small to very large. Different farmers have more or less money and access to the information and technologies. There is a correlation between the higher inputs and yields. The farmer purchasing the capacity to for input decide from the cropping system and production practice. Therefore, the production practice can be at different levels. There is no cost, low cost और high cost. अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे क्रॉप जो है वो फार्मर्स 2-3 चीज़ों का ध्यान करेगा कि जब भी उसको अपनी ये क्रॉप्स की मैनेजमेंट करनी है, उसको ध्यान में रखना है, तो उसमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि उसमें उसका नो कॉस्ट है, कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है. नंबर सेकेंड, लो कॉस्ट, कम खर्चे में हुआ है, या फिर उसने हायर इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, ट्रैक्टर यूज़ किया है, पुलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं, हायर लेवल के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं, हार्वेस्टर यूज़ किया है, थ्रेशर यूज़ किया है. तो इसके लिए फिर उसका बजट भी और उसका कॉस्ट भी हाई हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? न्यूट्रिएंट्स नाम से पता चला है, हम लोग भी अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. वो उनको भी हमारे जैसे जैसे हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, वी कैन टेक द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, दिस वन विटामिन्स, रफेस, वो सारी अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं. तो सिमिलरली इन दिस वे प्लांट्स को भी काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं चाहिए. सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते कैसे? इट इज़ बेस्ड, दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम एयर. नेक्स्ट पेज पे देखो टेबल दिया हुआ है. एयर, वाटर एंड सॉइल. सो कोई भी अगर प्लांट है उसको अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए. विदाउट न्यूट्रिएंट्स दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, बिकॉज उसके लीव्स शट डाउन हो जाएंगे, सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, रूट्स वीक हो जाएंगी. ठीक है, तो एयर से अभी वो लोग क्या इंटेक करेंगे? फ्रॉम एयर दे कैन यूज द कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो एयर से लेंगे. फ्रॉम वाटर दे कैन टेक द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड फ्रॉम द सॉइल दे कैन टेक, मिट्टी के अंदर जो हैं अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं. सो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, micronutrients as well as macronutrients. Macro, M-A-C-R-O. Macro means these are the nutrients which are used by the plants in a large quantity, and macronutrients means these are the nutrients which are used by the plants in a small quantity. उनको इतना ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं है. अभी यहाँ पे टेबल में आपके बुक में दिया हुआ है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एग्जाम्पल है मैक्रो, M-A-C-R-O. मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा. इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. एंड इन केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स द एग्जाम्पल्स आर आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए. इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, सो इट कैन इफेक्ट द प्लांट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्शन ग्रोथ उनका कम हो जाएगा, उनका डिजीज़ की जो ससेप्टिबिलिटी है कि अगर वो डिजीज़ से फाइट कर पा रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, वो जल्दी उनकी मतलब उनके ऊपर डिजीज़ का इफेक्ट आ जाएगा. सो इसके लिए उनकी यील्ड अच्छी रही, उनका प्रोडक्शन अच्छे रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं. आप लोगों ने घर पे भी देखा है, हम लोग फ्लावर पॉट लगाते हैं, जो कुछ भी आप मिट्टी के अंदर कुछ भी अपने पॉट के अंदर प्लांट्स को लगाते हैं तो उसके अंदर आप फर्टिलाइजर्स डालते हो. ठीक है, वो फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे? सॉइल को फर्टाइल करेंगे. ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनको अपने ग्रोथ के लिए चाहिए, इससे प्लांट्स जो है वो उनका ग्रोथ जो है ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें आएगा, ज़्यादा अच्छी उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, सीड निकलेंगे और उसका ग्रोथ मच बेटर रहेगा.
ना फर्टिलाइजर्स तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स हमें डालने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज मैन्योर, नंबर सेकंड इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स आर व्हाट? मैन्योर्स दे आर द ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब जिसको हम लोग घर के बनी हुई देसी खाद भी बोलते हैं, या इसके अंदर कुछ भी केमिकली फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं ये केमिकली मेड हैं, इसको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है एंड इट इज़ पॉइजनस। ये कुछ भी फार्म इसमें प्लांट्स के ऊपर इसका इफेक्ट करते हैं। सो मैन्योर्स इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ सकता है? आपका काउ डंक ले लो आप, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल का बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है जो वो बॉडी से बाहर थ्रोन आउट करते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा इसमें आ जाएगा। और प्लांट का वेस्ट, ये सारा इसमें मैन्योर में आ जाएगा। नंबर फर्टिलाइजर्स जो हैं ये केमिकली इसको हम लोग इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में इसको प्रिपेयर करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ वेरी गुड। इससे प्लांट्स जो हैं, अगर इसका मेन हमें ये क्यों सप्लाई करना पड़ता है, इसको क्यों देना प्लांट्स को इंटेक करवाना पड़ता है? मैन्योर इट हेल्प इन रिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो अंदर की जो फर्टिलिटी है, जिसके कारण प्लांट्स अपनी ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो वो इसको इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ मैन्योर। The bulk of organic manure it help in improvement the soil structure. This involves increasing the water holding capacity. Soil जो है आपको पता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल के अंदर पानी को पकड़ने की एक कैपेसिटी रहती है, कि पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की रहती है, जिसके कारण रूट्स जो हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उससे इनटेक करते हैं। सो मैन्योर जो है वो क्या करेगा? एक तो सॉइल का स्ट्रक्चर्स को अच्छे से इंप्रूव करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। In sandy soil, in the claying soil, the large quantity of organic matter it help in a drainage and avoid the water logging. इसके बाद जितना भी पानी का वेस्ट मटेरियल है वो मैन्योर जो है उसको चेकआउट करेगा। नाउ मैन्योर जो है इसको आगे आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो इसको। नंबर फर्स्ट इज कंपोस्ट मैन्योर और नंबर सेकेंड इज ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, एनिमल्स, काउ डंक, ऑल द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, एग्जांपल काउ डंक, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूजिस, डोमेस्टिक वेस्ट, जितने भी हम लोग धनिया वगैरह, पालक वगैरह सब साफ करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। दे कैन सीवेज वेस्ट, ये सारा का सारा एक उसके अंदर डिप पिट के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे और ऊपर से सॉइल से इसको कवर करेंगे। सो ये सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल अगर हम लोगों ने इसके अंदर एक पिट के एक गड्ढा मतलब खोद के उसके अंदर हम लोगों ने इसको डाल देंगे और धीरे धीरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण विद द हेल्प ऑफ स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे कैन डिकम्पोज एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। बट इन केस ऑफ ग्रीन मैन्योर में जितने भी वेस्ट मटेरियल अगर हम लोग ले रहे हैं, इसमें ग्रीन मैन्योर में सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है ग्वार जो है इसको कुछ प्लांट्स के साथ ग्रोन किया जाता है बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन। तो ये क्या करेगी? सारी सॉइल को उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी और ये जो है विदाउट एनी केमिकल इफेक्ट से है। इसीलिए जो फार्मर्स जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, पेज नंबर 209। फर्टिलाइजर्स दे आर Fertilizers are commonly they are produced by the they are chemical in the factories or in industries. Fertilizers supply the nitrogen, phosphorus and potassium. ये सारे जो हैं chemically fertilizers हैं। They can use to ensure the good vegetable growth, for example leaves, branches and flowers, and give rise to the healthy plants. Fertilizers are also factors in a high yielding, high cost farming.
The fertilizers it should be apply on a plants very carefully in a proper dose because ये काफ़ी पॉइजनस रहते हैं, इसके कारण सॉइल जो है वो डैमेज भी हो सकती है और सॉइल के अंदर छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स हैं या छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो भी इससे डैमेज हो सकते हैं. सो फर्टिलाइजर्स इट शुड बी अप्लाइड केयरफुली in a proper dose time and observing the pre and post application precaution for their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to excess irrigation and not fully observed by the plants, so this excess fertilizers then lead to the water pollutions. तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो इरिगेशन मीन्स वाटरिंग टू द क्रॉप्स, वो मेथड जिसे हम लोग पानी दे रहे हैं खेतों को, तो उससे क्या है कि एक्सेस जो हैं या दूसरे फर्टिलाइजर जो भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला है तो वो वॉश अवे हो जाते हैं और इसके कारण प्लांट्स जो हैं वो पूरे फर्टिलाइजर्स को इंटेक्ट नहीं कर पाते. सो यहाँ तक इरिगेशन. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा इरिगेशन. इरिगेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ irrigation it is the process of watering to the crops. खेतों को पानी देना, क्रॉप्स को पानी देना. इरिगेशन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है. इस रेन वाटर जो है हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. ना मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इट इज़ द रेन फीड. मोस्टली जितने भी हैं एग्रीकल्चर लैंड जो हैं या एग्रीकल्चर जो हैं हम लोग खेती कर रहे हैं वो सारे के सारी बारिश के ऊपर, हमारी रेन वाटर के ऊपर डिपेंड है. सो सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट ऑफ द एरियाज डिपेंड अपॉन टाइम मानसून्स एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू द मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन्स. तो इसीलिए मानसून सीजन और डिफरेंट सफिशिएंट पानी जो है वो खेतों को मिलता रहे, इसी के लिए हम लोग इरीगेशन का ध्यान रखते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि ड्रॉट के टाइम पे जब इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, रेन डिस्टर्बेंस ऑफ रेन्स, तो उस टाइम पे हम लोगों ने जो खुद के डैम्स में चेक करके पानी रखा है या वेल्स में है, कैनाल्स में है, तो रिवर्स में है या टैंक्स में है, तो उसका हम लोग फिर सीधा अपने क्रॉप्स को वहाँ से सप्लाई करते हैं पानी. तो 207 पेज पे इरिगेशन वाला टॉपिक है. सो इरिगेशन अंडर सच कंडीशन, अंडर द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, कभी कभी अगर सपोज सूखा पड़ गया है, पानी नहीं आ रहा है या पानी जो है वो जितना मानसून में हमें बारिश चाहिए थी बारिश नहीं मिल रही है, ग्राउंड लेवल जो है वो वाटर टेबल जो है वो नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, तो पानी जो है हम लोग डैम्स के थ्रू चेक जो हम लोगों ने किया था वहाँ से हम लोग इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. नाउ एग्रीकल्चर लैंड पे पानी देने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज वेल, नंबर सेकंड कैनाल, नंबर थर्ड रिवर फीड, रिवर के थ्रू भी हम लोग पानी वहाँ पे सप्लाई करते हैं. एंड नंबर लास्ट वन इज टैंक्स, छोटे छोटे स्टोरेज जो हैं वहाँ पे हम लोग उसको पानी को स्टोर करके रखेंगे और यहीं से हम लोग आगे नेक्स्ट जो है वो अपने खेती को या क्रॉप्स को पानी कल्टीवेशन में उसको देंगे ग्रोथ के लिए. एक चीज़ और इसमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, बट प्लांट्स जो हैं उसको हम लोग डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं. नंबर फर्स्ट इज इसको हम लोग खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे. नंबर सेकंड इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ये आपने एसएस में या सोशल में भी आपने स्टडी किया होगा. देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग इन अ रेनी सीजन. अब ये जो है खारिफ क्रॉप जो है और रबी क्रॉप्स, ये दो टाइप्स की सीजन है. 6 मंथ के ग्रोथ के बाद हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. खारिफ क्रॉप इट ग्रो इन अ रेनी सीजन. इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारी आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल कॉटन, मेज, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, ब्लैक ग्राम. बट इन केस ऑफ रबी क्रॉप्स टाइम पीरियड इट ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर. एंड रबी क्रॉप्स it is grown in a winter season. It grow in a winter season. Best example इसकी फॉर एग्जाम्पल पैडी. पैडी मतलब क्या, वो जो राइस के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं पानी के अंदर, पैडी, सोयाबीन एक्सेट्रा, मेज, कॉटन, वो सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगी. और सॉरी इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगी वीट, ग्राम एंड
wheat, gram and peas, maize and mustard। ये सारी इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, पेज नंबर 207। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स डिफरेंट वेज हैं क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए। तो फार्मर्स क्या करेगा कि उसको अलग अलग तरीकों को यूज़ करेगा, डिफरेंट मेथड को, कि एक ही टाइम के अंदर, एक ही समय के अंदर, एक ही एरिया के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशन वो कैसे करेगा और वहाँ से उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक टिल देन गुड बाय।